anniversary. So what you would like to say as you are like very connected to your dad? Yeah, I mean, we've been looking forward to doing this since a while now. Dad had never heard us perform on stage or I mean, sing Hindi much, specifically. So a lot of the times when we were in rehearsal, we were hoping, we were imagining him beside us and Hearing just us sing. wondering what he would be like, how his energy would be, and Yeah. how excited and how he'd be joking around, and it's a bittersweet kind of moment for me and Tamra. We're excited to bring the music for everyone who loved Dad, but it's also hard for us because we're just imagining how proud Dad would have been of us. Yeah, and it's weird to be like in Dad's place, like on stage, because normally we're in the audience and we're looking at him, and now we're on stage, and hopefully he's looking at us. Yeah. I mean, normally we see him perform with the band guys who we're going to play with, and now being able to do that with them makes us feel connected to him. So, I mean, we're just looking forward to. Excited. Yeah, we're excited. A little nervous too. Very nervous. Yeah, quite nervous, and we just hope the show goes off well. Yeah. सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग थी केके सर के साथ? Well, I introduced KK to the world of music as a young artist. और उस टाइम जब मैंने पल और यारो दोस्ती जैसे गाने के साथ KK को इंट्रोड्यूस किया था, it was an amazing time. मुझे याद है कि जब वो एल्बम रिलीज़ हुआ था, he came to me and he said, Les, finally my dream has come true. I've always wanted you to make my album and it's happened. और उसके बाद so many years later to recreate यारी नंबर 1, वही यारो दोस्ती का जो गाना है, and to have Nakul and Tamra sing for me in the same studio. Yeah. और वही स्टूडियो में जहाँ केके ने गाया था, वही जगह पे जहाँ केके खड़ा रहता था, they stood and sang, and I think I'm blessed because I've got to live the whole song one more time with Yari number 1 and with Nakul and Tamra, and I think it's a very very special moment. Yeah. और आज केके का बर्थडे है, तो मुझे लगता है कि he is also smiling, and Yeah. मेरी तरफ से एक स्लाइस केक तो खाएगा. Yeah, I mean, Many slices of cake. One from my side he's going to have for sure. It was a very special moment, and Leslie made it really comfortable for us. He was like, just do your thing. Yeah. There was no pressure, and it just a very comfortable, fun environment, and that whole vibe of Yaro really. आज केके सर का 54th बर्थडे है, as well as like people are very eager to know that आज फिनिक्स मॉल में कॉन्सर्ट किया जा रहा है केके सर को like एक अप्रिशिएशन करने के लिए क्या कुछ आपके अब ऐसे मौके पर एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि बस के जहाँ भी रहे खुश रहे, दिल से दुआएं उसके लिए। उसने पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया कि लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। और उसके परिवार वालों को मैं इतना कहूँगा, खैर उनके ऊपर क्या बीत रही हो तो वो लोग जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बस सब्र से काम लो। के कहीं गया नहीं है, हम सबके बीच में ही है वो, और उसने इतना अच्छा काम किया है कि हम कोई उसको भूल नहीं पाएंगे। सर ये भी जानना चाहेंगे कि जब केके सर और आपका कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट जब एक साथ हुआ, कैसे साथ मिले थे, कुछ ऑडियंस को बताना चाहिए। अरे वो तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी, उसकी बात ही कुछ और थी, क्योंकि उस वक्त मैं भी स्ट्रगलर था, और के को पहली बार मैं वहीं मिला था जब मैंने तड़प तड़प के का ट्रैक किया था। फर्स्ट टाइम उसको तभी मिला था। तो सबसे अच्छी बात मुझे उसकी यही लगी थी कि बड़ा ऑनेस्ट था। मैंने जब उसको तड़प तड़प के गाना गा के सुनाया तो बड़े मूड में आके बोलता है, अरे इस्माइल भाई ये गाना क्या, मैं पॉप सिंगर हूँ, मैं इस तरह के गाने तो मैंने कभी गाए नहीं, और इस तरह का गाना मैं गा भी नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल गाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी एक मासूमियत देखा ना मैंने, वरना हर आदमी पहले ये सोचता है कि मैं कोशिश करता हूँ, हो गया तो गा दूँगा। इसका वैसा नहीं था, इसने पहले ही मना कर दिया कि इस तरह का गाना मैं गा ही नहीं सकता हूँ।
तो मैंने कहा यार तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम ऑनेस्ट आदमी हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है, गाना कैसे गवाना तुम वो मुझ पर छोड़ दो। हाँ फिर बाद में आप बोलना मत कि यार मैंने ठीक से गाया नहीं या मुझे गाना नहीं आता है। तो बहुत बिंदास था वो, और जब गाया तो ऐसा गाया कि आप यकीन मानिए तब से जो लोगों ने रोना शुरू किया तो आज तक रो ही रहे, तो बहुत बड़ी बात है ना। आज भी अगर आप कहीं भी अगर गाना सुनते, आज केके सर का 54th बर्थडे है और आज वेल एज आज फिनिक्स मार्केट सिटी में लाइक देयर आप केप्ट अ कॉन्सर्ट लाइक उनके सन एंड डॉटर में, आप क्या कहना चाहोगे आज आपके इसकी एक पार्ट? आई जस्ट वांट टू से कि हम सब बहुत आई थिंक अ प्रिविलेज जनरेशन है जिन्होंने उनका म्यूज़िक सुना है एंड इट्स अ you have to celebrate, you know, the amount of love he's gotten, the sort of songs he's done, and I think आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ। अफसोस है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, बट यू नो आई फील लाइक उनका पूरा करियर हम सबको सेलिब्रेट करने का आज मौका मिला है एंड मुझे खुशी है कि आज मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ। अगर आपको भी अगर कोई मौका मिलता है केके का कोई भी सॉन्ग ऐसे गाने का जितना आप कौन सा गाना गाना चाहोगे? I don't know, I think all his songs, I'm a listener, ma'am. I think मुझे when you talk about KK sir, I've grown up listening to his songs and just उनका सॉन्ग आई थिंक अटेम्प्ट करने के लिए यू नो बहुत बड़ी बात होती है, बट आई फील लाइक आई एम अ लिसनर, आई एम अ फैन एंड आई वुड लिसन टू ऑल हिज सॉन्ग्स। हम देख रहे हैं कि आजकल की जो बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री है, काफ़ी लोगों का ऐसे न्यूज़ आ रहा है, कभी किसी को कुछ हो जा रहा है, जैसे केके सॉन्ग लाइक अचानक ही उनका न्यूज़ आ रहा है और वाकई बहुत शॉकिंग था। Okay. क्या लगता है कि इतने प्रेशराइज होते हैं आजकल सभी स्टार्स हैं? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई यू नो किसी की डेथ हो जाना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई डोंट थिंक कोई अपने साथ ये जानबूझ के करना चाहता है। आई थिंक ऐसी सर्कमस्टांसेस शायद लाइफ में पैदा हो जाती हैं दैट यू नो ऑल दिस हैपेंस। आई मीन इट्स वेरी सैड। Lastly, what you would like to say to all the fans of KK who are very excited to listen to this concert? I just feel like you all should, irrespective of the concert, you know, just enjoy his whole career. I feel, you know, the kind of songs he's done. I feel like agar hum you know, if he's one of your favorite artists, the fact that you just listen to his songs even after, you know, he's not with us anymore, I think is you know, a blessing for us, and it's just I think ऐसे हम शायद उनको श्रद्धांजलि दे पाए on a daily basis, you know, as fans. फिनिक्स मार्केट सिटी में पहले भी कई आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, एंटरटेनमेंट जोन है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ क्या कहना चाहिए यहाँ के बारे में, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में? एक्चुअली मैं यहीं रहती थी मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ एंड मैं बहुत आ चुकी हूँ मार्केट सिटी एंड आई थिंक इट्स बिन यहाँ पे बहुत पिक्चरें देखी हैं मैंने। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट एंड पीपल हैव परफॉर्म्ड हियर। आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट, इट्स रियली गुड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सॉर्ट ऑफ यू नो being on stage with people. I'm not going to sing but just you know to share the stage with artists that are celebrating KK sir's life today. Thank you, ma'am. Thank you. आज भी क्या आज फिनिक्स मार्केट सिटी में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, केके को याद करते हुए आज उनका 54th बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी मिक्स सा फीलिंग है एक्चुअली। जब आ रहे थे यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि कैसा लग रहा है ना। सो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल लॉस्ट, डोंट नो। इट्स सेलिब्रेशन ऑल्सो, डेफिनेटली वी हैव टू सेलिब्रेट हिज म्यूज़िक एंड हिम एज ए पर्सन ऑल्सो। वो इंसान भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अमेजिंग थे एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई आई थिंक सब इकट्ठा हुए हैं और उनके बच्चों को भी मिला मैं, अच्छा लगा। तमारा और नकुल बहुत ही अमेजिंग है वो भी। आई थिंक जो मैं समझा हूँ कि उनको वो उनके पिताजी से मिला है, वो एक जो ऑरा होता है, एक जो
दुनिया को कैसे लेने के लिए with a pinch of salt वो वैसे ले रहे हैं एंड उनका ये अच्छा एक्सपोजर है. आई रियली होप एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर इन म्यूज़िक. मैंने सुना है, बहुत उनके साथ जैम नहीं किया है, पर अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सेंसिबल है, सेंसिटिव है. सो या इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग डे. सब मिले हैं हम. हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका और केके सर का कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहो, फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? यादें तो एक तो उनके बैंड से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो उनका बैंड का हिस्ट्री रहा है 25 साल से. कल्याण बरुआ, जेडी, रिंकू, लिंसे नाव पहले ड्रम्स में, लिंसे बाद में आया. जिस दिन लिंसे आया था उस कॉन्सर्ट का भी कहानी है. आई थिंक बहुत पहले आई वॉज गोइंग ऑन स्टेज बिफोर के और हमारा मतलब एक ही कॉन्सर्ट में हम दोनों बजा रहे थे, आगे पीछे था. तो वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो क्लोजली. और उन्होंने आके, हमने थोड़ा टाइम बिताया वहाँ पे. और उस दिन वो लिंजे को टीटू से ड्रम चेंज ओवर कर रहे थे. लिंजे जो नया ड्रमर, तब नया था, अब तो बहुत पुराना है. सो के गेव मी दिस कॉन्फिडेंस ना, ऐसे मिलके. आई वॉज न्यू कमर इन द म्यूज़िक सीन. तो ऐसा एक एनर्जी दिया उन्होंने कि मैं, जो एक एंग्जाइटी होता है शो से पहले, वो रिलैक्स हो गया था. इसके बाद के का शो है, ये एक था कि इसके बाद के है. तो मुझे बचपन से सुनते आए हैं ऑल ऑफ द सॉन्ग्स, यारो, पल. तो ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, फील एट होम. एंड देन मेरे शो के बाद जब उनको देखा मैंने, हाउ कंफर्टेबल ही इज़ ऑन स्टेज, ये एक तरह का सीख ही था मेरे लिए. बहुत अच्छा लगा. एंड ऐसे कुछ बातें हैं. साथ ही आजकल हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को अचानक कुछ भी हो जाता है. मानसिक क्या लगता है कितना स्ट्रेस लेकर वो ज़्यादा दे रहे हैं? बिकॉज हालिवुड में देखा है बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट थे उनको आज अचानक अटैक हो रहा है. शी इज नो मोर एज वेल एज वी हैव सीन मेनी मोर आर्टिस्ट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड आल्सो. सेम हैपेंड विद केके आल्सो. अच्छा, सॉरी आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लाइट बहुत ही तेज़ है. तो इट्स ओके. स्ट्रेस लेवल तो अब म्यूज़िक और इंडस्ट्री में नहीं है, वैसे ही लोगों को है. इतना ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हैं लोग. पहले लोगों के हाथ में इतना वक्त होता था, अब किस मतलब अब कुछ सालों से ऐसे लगता है कि टाइम इतना फास्ट जा रहा है. तो वो जो स्ट्रेस लोग ले रहे हैं वो तो है कहीं ना कहीं. आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है. आप नहीं भी रहे तो दुनिया चलता है. आपको लगता है आप कैमरा खा नहीं रहे, कैमरा चला रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो कंपनी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक हमें अपना टाइम चुराना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए. एंड उसके बाद जो लिखा है वही होता है, वो तो कह नहीं सकते. इफ़ वी टॉक अबाउट के ही वॉज ए फैमिली मैन. एंड वो हम तो ज़्यादा मतलब सोशलाइज करते हैं शायद, वो मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, वो मेरे से बहुत ज़्यादा कम करते थे. तो ये तो किस्मत में जो लिखा है, वी हैव टू जस्ट टेक इट एज इट कम्स. जस्ट सबको बोलूँगा कि कुछ ख़ास ऐसा अचीव नहीं करना होता है. मतलब ठीक है, जो दिल से कुछ करो, उसको कोई अगर रिस्पेक्ट आपको देगा, दिल से कर रहे हो रिस्पेक्ट, तो वो बहुत अच्छी बात है. उतना ही काफ़ी है. डोंट गो पुश योरसेल्फ सो मच कि आपका हेल्थ पे असर हो जाए. आई थिंक सबसे बढ़िया बात तो ये कि हम इस दुनिया में एक और दिन जी पाए ना, वही बहुत खूबसूरत है. तो टेक वन डे एट अ टाइम. खुश रहें, अपने अंडरस्टैंड हु लव्स यू, स्पेंड टाइम विद द लव्ड वंस. उसके आगे जो लिखा है, जैसे लिखा है, होगा. Something about Phoenix Market City में सारे कंसर्ट हुए हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट. और इनका गवर्नमेंट जो एंटरटेनमेंट जोन है हर एज ग्रुप के. मैं चाहता था कि फिनिक्स सिटी गोरेगांव में हो, मेरे घर के पास. ये तो आने में बड़ा तकलीफ होता है, बहुत ट्रैफिक होता है बॉम्बे में कहीं भी जाओ. लेकिन फिनिक्स सिटी ही है जहाँ पे हमें कॉन्सर्ट करने को मिलता है. सो आई रियली एम थैंकफुल टू द प्लेस, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक जगह डिज़ाइन किया है. बहुत कमी है बॉम्बे में ऐसी जगहों का. सो आई थैंक देम. फिनिक्स सिटी हर जगह एक हो, मैं चाहता हूँ, और हर जगह हम शो कर पाएँ. बहुत शो मैंने खुद ही किया है यहाँ पे. एंड इट्स नाइस कि बॉम्बे में ऐसा एक वेन्यू है. आज माफ़ कीजिएगा देखिए, अभी मुझे जाना ही स्टेज पे भी. मैं लेट भी पहुँचा, बट मेरे टाइम पे पहुँचा हूँ, ऐसा नहीं लेट पहुँचा हूँ. बट माई सॉन्ग इज़ नाउ. ठीक है, थैंक यू. आज के सर का 54th बर्थडे है एंड एज वेल एज आज हम फिनिक्स मॉल में इतना बड़ा कॉन्सर्ट है.
पहली बात तो है कि बहुत अजीब लग रहा है कि कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि हम ऐसे आएंगे जब के यहाँ नहीं होगा, और के का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जब के नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए, सब के लिए, हम तीनों के लिए आई थिंक ये बहुत अटपटा मोमेंट है। बट ऑफ कोर्स ज़िंदगी का सच है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नकुल और तामरा के लिए, क्योंकि ये आज उनके के की लेगेसी को वो लोग आगे लेके जाने वाले हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर देम। एंड देन मैं चाहता हूँ कि तामरा और नकुल मेरे लिए जैसे के ने गाया वैसे भी मेरे लिए वो भी गाएं। तो हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि आज फॉर्मली वो दोनों लॉन्च हो रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि फिनिक्स मार्केट सिटी में ये प्रोग्राम हो रहा है। आई जस्ट वांट टू करेक्ट दैट। और मैं बहुत खुश हूँ कि नकुल और तामरा अपना डेब्यू कर रहे हैं, स्टेज का डेब्यू कर रहे हैं। आई एम श्योर रिलीज़ तो उन्होंने और भी गाने किए हैं। और जैसा विशाल ने कहा, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन कि ये नहीं सोचा था कभी कि हम के की एब्सेंस में हम उनको एनकरेज करेंगे। उसके सामने करते तो और अच्छा लगता, क्योंकि के की जो वो स्माइल है, वो एक डिम्पल पड़ के साथ में उसमें हमें बहुत अच्छा लगता। स्कूल में भी के ज्योति से मिलते रहते थे, तो तामरा और नकुल की बात होती थी। इनफैक्ट बाद में के गॉट सो बिजी विद हिज कॉन्सर्ट्स, हम सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए कि स्कूल में हम पेरेंट टीचर मीटिंग या जो कॉफ़ी हाउस या और प्रोग्राम्स होते थे हमारे बेटे आसमान के स्कूल में, वहाँ हम मिलते थे, क्योंकि नकुल और तामरा भी वहीं स्कूल में पढ़े हैं। तो वो अजीब लग रहा है एक, लेकिन शायद ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ इसी तरीके से आती हैं और लेगेसी भी इसी तरह से शायद जाती है, चलाई जाती है और आगे लेके जाई जाती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू तामरा एंड नकुल, एंड फिर देखते हैं आगे साथ रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि मैं के को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज मैं इससे पहले भी यही कहा था कि के का ओरिजिन इज़ फ्रॉम केरला, इवन दो उनका चाइल्डहुड पूरा दिल्ली में था। लेकिन जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और उनके गाने रिलीज़ हुआ करते थे, ढेर सारे इंटरव्यूज़ पे ही यूज्ड टू से कि मैं ओरिजिनली फ्रॉम त्रिशूर केरला। बहुत गर्व की बात होती है हम सब के लिए, बिकॉज हम लोग भी वी वांट टू लुक अप टू समबडी ना, कि कोई हमें वो रास्ता दिखाए ताकि हम कैसे अच्छा सिंगर बने। और उन्होंने करके दिखाया पहले इन टर्म्स ऑफ मलयाली सिंगर्स इन बॉलीवुड। और ही इज़ डेफिनेटली मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, ताकि मैं वो स्टेप लूँ कि मैं इंडस्ट्री में आके एक सिंगर बन जाऊँ, एक म्यूजिशियन बन जाऊँ। सो उसकी वजह से मैं के को बहुत मिस करता हूँ। और डेफिनेटली मैं बस उनकी फैमिली और नकुल और तामरा सबको मैं बस लव और क्या कहूँ, बस दुआएं बस मांगता हूँ भगवान से, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ड मोमेंट। क्योंकि अगर सब लोग के को अगर कोई भी सुनेगा, वो लोग जानते हैं कि के इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन, हेल्थी, हार्ड वर्किंग, फैमिली लविंग पर्सन। और ऐसा एक इंसान को खोना इज़ वेरी वेरी पेनफुल। के की याद में क्या थोड़ा कुछ अगर उनके लिए घूमना है, क्योंकि सभी फैंस आज देख रहे हैं और आज भी जब भी कोई सुनता है तो लाइक उन्हें लगता नहीं कि के हम सबके बीच नहीं है, आज भी लगता है कि वो है हमारे साथ ही है। इसीलिए शो का नाम के फॉरएवर है ना। अगर कुछ लाइनें अगर आप थोड़ा बहुत अगर के लिए बोलना है। हम तीनों मिलके गा देते हैं, यारों दोस्ती। सर आप स्टार्ट कीजिए। यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, ये न हो तो जिंदगी है। थैंक यू। लास्टली सभी को आपका क्या मैसेज होगा, लाइक के लिए आप
कॉन्सर्ट वेदर देयर आर ऑफ एनी एज, सो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि आई थिंक हम सब तामरा और नकुल को बहुत सपोर्ट करें, उन्हें इनकरेज करें, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड। सो और जितना प्यार केके को दिया था उससे ज़्यादा प्यार नकुल और दे तामरा नीड को इट। दिया। थैंक यू।